Welcome to one and all on the 37th session, and very good morning to our family in US and Canada. And I've also seen some of the forms people are from Africa, Bangladesh. Welcome all of them. Well, it is a great pleasure to have two of the prominent PhD scholar with us today. Somehow I always get carried away, somebody who has done PhD, because in my life probably I don't know whether I'll be able to do it or not. पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा. But today we have Dr. Renuka Porwalji, great scholar. She's going to speak a lot on various subjects. But when I just asked her on what subjects she has done PhD, and she told me she has done on Buddhi Sagarji Maharaj. If you remember recently, Prime Minister spoke from the Red Fort about Buddhi Sagarji Maharaj, that he predicted that one day we have to pay money to buy the water, which today we are, but he predicted 100 years before. And incidentally, when I saw the Buddhi Sagarji Maharaj photo, it was there in my small town when I was childhood in Adoni temple. It was just one of the photos. And then when I went back and saw when the Prime Minister told, then I saw, okay, this is a photo I have been praying from the childhood. So this is about the Buddhi Sagarji Maharaj. I'm sure Renuka ji will tell more, but she has done more research on stupa, Jain stupa, and various things. She has written 3 books, 50 research papers, and 200 articles. I mean, something amazing work she has done in Jainism. And today we are honored to bring her on this platform. We have another gentleman who is also a PhD scholar, Dr. Abhay Doshi. And Abhay Doshi has done a very interesting, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट पे उन्होंने PhD किया है, which is Jain Bhakti. I mean, many scholars he has done the research, starting from Anand Ganji to various some of the names I can't even tell which he has done the research and PhD. And he has a reason saying how 24 Tirthankars and what do we pray to them. I am sure today is going to be very, very interesting session. I'm not going to take much of your time between these two scholars want to share their research and the articles what they have published. Even Abhay Doshi has published 30 articles. And I just incidentally came to know that we all three are from the same neighborhood of Siroi. Abhay Doshi is from Sivganj, Renuka Porwalji's father-in-law also from Siroi, and I am from Kalandi. So it's very incident, like such a small world. The two of the PhD scholars, and of course I'm nothing before them, but I'm also happen to be from Kalandi. So it's honor to have Renuka Porwalji. Jai Jinendra, welcome. It's honor to have Dr. Abhay Doshi ji. Welcome on our platform, and all yours, Abhay ji and Renuka Porwalji. Jai Jinendra. Thank you very much, Ramesh bhai. Everybody, good evening. जय जिनेंद्र. सबसे पहले तो मैं आपकी जैन जर्नल टीम, स्पेशली नील साहब और रमेश भाई का धन्यवाद अदा करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर ये जो मेरा प्रिय विषय है मथुरा का जैन स्तूप, उस पर प्रेजेंटेशन करने का मौका दिया. धन्यवाद. आई एम हैप्पी. फर्स्ट आई विल से समथिंग अबाउट मथुरा. मथुरा नगरी पुराण काल से ही मोक्षदायी नगरी के रूप में जानी जाती है. अपने यहाँ पर 7 नगरियों को मोक्षदायी कहा है. उसमें काशी, कांची, अवंतिका, द्वारका इत्यादि, इसमें मथुरा का नाम भी है. हम सोचेंगे भाई मोक्षदायी क्यों है, तो भाई यहाँ पर हमारे 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी, भावी तीर्थंकर कृष्ण भगवान जो हमारे भावी तीर्थंकर है, और उनके भ्राता बलदेव, उनका जन्म हुआ था यहाँ पर. इसके लिए ये सदियों से तीर्थ के रूप में जानी जाती है. इसके उपरांत यहाँ से रॉयल रूट पास होता था, जिसे हम राजमार्ग कहते हैं ना. ये जो मथुरा जो स्थल है वो बड़े बड़े कारवां यहाँ से पास होते थे. पूर्व दिशा में पाटलिपुत्र, ताम्रलिप्ति, पश्चिम में तक्षशिला और गंधार, और दक्षिण में हमारा गुजरात, भरूच, खंभात, और मालवा में जिसे हम उज्जैन कहते हैं ना, यहाँ से सब कारवां आते थे और ये मथुरा में मिलते थे. मथुरा में कारवां रुकते थे. यहाँ पर
सब श्रेष्ठियों के पास में एक्स्ट्रा मनी होता था और वो जैन, बौद्ध और वैष्णव, कृष्ण भगवान के और ये सब चारों संप्रदाय के इंडियन ओरिजिन जो रिलीजन्स है उनके वहां पे मंदिरें बनाते थे और लोगों को दान भी करते थे। यहाँ की लाक्षणिकता यह है कि यहाँ पर जो लोग हैं सभी धर्मों के लोगों ने जैन धर्म के ये प्रतिमा भरवाई है। ये सब हमको 2000 साल पहले के प्रतिमा लेखों से जानकारी मिलती है। ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा जैन स्तूप था जो देवी ने बनाया था, जिसके बारे में पूरे शास्त्रों में चर्चा है। सारंग सूत्र, व्यवहार चूर्णी, आवश्यक नियुक्ति, सब में मथुरा के स्तूप के बारे में चर्चा है। तो ये इसका हम जरा डिटेल देखेंगे। तो पहले पावर पॉइंट में प्रभु का माँ सरस्वती की प्रार्थना और नवकार मंत्र का स्मरण करके चालू करते हैं। तो माय सब्जेक्ट इज एंशिएंट आर्ट एंड इमेजेस ऑफ जैन स्तूपा। ये स्लाइड में जो हम देख रहे हैं स्तूपा डोम है, यह एक आयग पट है, करीब करीब 2-2.5 फुट का होता है, जो स्तूप के साइड में वॉल में लगाया करते थे। ये खाली दर्शन के लिए है, पूजा के लिए नहीं, इसका हमें दर्शन करना है। उसके नीचे ब्राह्मी में शिलालेख है, वो आप देख सकते हैं। इसका डिटेल हम बाद में देखेंगे। तो पहले शुरू करते हैं माँ सरस्वती की प्रार्थना से। तो प्रेयर से चालू करते हैं। उन्दींदु कुखिर चूषारवन्ना सरोज हत्था कमलेरी सन्ना वायसिरी पुत्थ वक्क हत्था सुहायसा अमह सया पसत्था। It describes that the complex of Devi Saraswati is like a mogra flower, moonlight, cow's milk, and dewdrops. Holding manuscript, lotus, and veena, she blesses the devotees with everlasting happiness. नवकार मंत्र। नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्यणम, नमो वज्राणम, नमो लोहे सव्व साहुणम, एसो पंच नमुकारो सव्व पाप नाशनो मंगलानंच सबे सिंह पडमम पवई मंगलम। हमें जब हम स्तूपा की बात कर रहे हैं तो स्तूपा क्या है थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं कि जैन धर्म में स्तूपा के बारे में क्या कहा गया है और कहाँ पे था। The stupa is a mound built in the memory of a great person. If it is a dome shape, it is called stupa. Otherwise, normally चैत्य जैसा होता है, वहां पर कुछ वृक्ष वगैरह उगाए जाते हैं, कुछ फिर वो वृक्ष का तरह का होता है। कभी कभी स्तंभ भी होता है, पर जनरली स्तूपा मेमोरी है, ग्रेट पर्सन्स की मेमोरी के ऊपर बनाया गया होता है स्ट्रक्चर। जैन धर्म में 3 स्थल के ऊपर स्तूपा बनाया गया था, अष्टापद, वैशाली एंड मथुरा। द स्तूपा एट अष्टापद वाज कंस्ट्रक्टेड बाय भरत चक्रवर्ती। उसका नाम था सिंह निषिध्य आयतन। वो उन्होंने ऋषभ देव की याद में बनाया था, पर उसके आसपास उन्होंने ऐसा यंत्र मानव पुरुष बनाया था कि कोई वहां पे जा नहीं सकता। तो हमारे यहाँ से किसी ने नहीं देखा था, सिर्फ गौतम स्वामी उनकी विद्या से वहां पर गए थे। दूसरा जो स्तूपा है मुनीश्वर स्वामी का, वो वैशाली में था। वो कुणिक राजा ने वैशाली को कैप्चर करने के लिए उसका नाश किया था। और तीसरा जो स्तूपा का जो उल्लेख है वो मथुरा के अंदर था, जिसको देवी ने बनाया था ऐसा कहते हैं। और उसके हमारे पास में पुरातात्विक उल्लेख भी है, शास्त्रों के उल्लेख भी है, और ये जो उल्लेख है वो मेडिवल पीरियड तक मिलते हैं। वो बहुत अच्छी कंडीशन में था, पर इसका नाश 1018 में किया गया। कंप्लीटली इट वाज डिस्ट्रॉयड, पर कुछ तो भाग रह जाता है। तो वहां का मथुरा के जैन संघ ने उसको 5 साल के अंदर ही रिपेयर कर दिया, क्योंकि हमें 1018 के पहले की मूर्तियां भी मिलती है जिस पर शिलालेख है, और 1024 के
पास की भी मूर्तियां मिलती है जिस पर लेख के और ईयर लिखा हुआ है। इससे हमें पता चलता है कि मथुरा का संघ इतना प्रोमिनेंट था कि 5 साल में उस स्तूप का जीर्णोद्धार कर दिया। एक्चुअली क्या हुआ, सन 1880 के आसपास में मथुरा के अंदर जब भी कुछ बिल्डिंग का काम करते समय वहां से गंधार शिल्प, गंधार कला के कुछ शाल बंजिकाएं आदि प्राप्त हुए। तब उन्होंने सोचा ये तो कुछ मथुरा नगरी अलग ही है और यहाँ पर इतने सारे जो माउंट्स है, टीला है, टीला अर्थात माउंट्स, छोटी छोटी टेकरा, तो ये बोले इसको हमको एक्सकावेट करना चाहिए, बहुत कुछ मिल सकता है। तो उन्होंने ये सब एक्सकावेट करना चालू किया। तो वन ऑफ द टीला वाज कॉल्ड जैनी टीला और उसका सेकंड नाम था कंकाली टीला। यहाँ पर ये एक्सकावेशन प्लान है। ये प्लान में बहुत सारे मंदिरों की नींव दिख रही है, कुछ छोटे 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 मंदिर या धर्मशाला आदि की नींव दिख रही है। ये पूरा कंकाली टीला का मैप है। इसके अंदर जो राउंड शेप में जो दिख रहा है वो जैन स्तूपा था। ये डिस्ट्रॉय करने के बाद में भी जो पड़ा था ना, वो करीब 30 फुट ऊंचा था। तो वो कितना ऊंचा होगा कि जो मलबा भी जिसका 30 फुट रह गया। इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। जब भी हाँ। मथुरा का इम्पोर्टेंस क्या है वो थोड़ा बताएंगे। और हाँ। दूसरी बात, जो भरत चक्रवर्ती ने जो स्तूप बनाया था, वो जो स्तूप मूल रूप तो सबके दर्शन के लिए ही बनाया था। हाँ। और अष्टापद सुवर्ण का था। हाँ। अजितनाथ भगवान के समय में जो सगर चक्रवर्ती, उनके भाई थे सगर चक्रवर्ती, 8,000 पुत्रों ने समुद्र का जल, गंगा समुद्र का निमित्ता मिलकर गंगा नदी का जल लाके जाने का रास्ता बंद किया। बाकी भरत चक्रवर्ती की भावना तो थी कि सब लोग अष्टापद का दर्शन करें, वो स्तूप का दर्शन करें। उन्होंने ऐसी रचना नहीं की थी कि कोई लोग दर्शन न कर पाए। वो अजितनाथ भगवान तक, मतलब कि ऋषभदेव भगवान से अजितनाथ भगवान तक तो उसका दर्शन चालू ही था। अजितनाथ भगवान के बाद इसका दर्शन बंद हुआ। क्योंकि तो मुझे मथुरा के बारे में थोड़ा सा, जैन धर्म में मथुरा का क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए। हाँ, देखो जैन धर्म में मथुरा का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। क्योंकि क्या है, नाम बदल जाते हैं, लोगों को ध्यान नहीं आता। इसके जो पुराने नाम है महुराउरी, महुराउरी, महुरी। हमारे यहाँ पर जगत चिंतामणि चैत्य बंधन बनाया गया है। चैत्य बंधन अर्थात श्राइन, जहाँ पे भी चैत्य हो वहां हमारे बंधन करना है। तो जगत चिंतामणि चैत्य बंधन गौतम स्वामी ने बनाया। उसके अंदर सभी बड़े बड़े तीर्थों के नाम आते हैं। उसमें एक नाम ये भी आता है, महुरी पास दुह दुहरी खंडन। दुख और पाप का नाश करने वाली मथुरा नगरी का वो याद करते हैं और उसको नगरी को, वहां पे आए हुए चैत्यों को वंदन करते हैं। तो महुराउरी जो है वो गौतम स्वामी उसका ये चैत्य वंदन में उल्लेख करते हैं। उसके उपरांत भी बहुत सारे हैं, पर हमारे यहाँ पर क्या होता है, एक ही नाम की 2-4 अलग अलग नगरियां होती है। गुजरात में भी एक मोरी नगरी है। तो सबको क्या लगता है कि भाई ये जो चैत्य बंधन में जो मोरी नगरी, मोरी का उल्लेख किया है वो ये मोरी है। पर वो मोरी तो बहुत बाद में बसी हुई है। वल्लभ, ये जो वल्लभीपुर का नाश हुआ ना, तब ये वाली गुजरात वाली जो मोरी नगरी बसी थी, कि वहां से कुछ मूर्तियां वहां लाई गई थी। पर ये जो हम बात कर रहे हैं मथुरा के जैन स्तूप की, वो उसी की महुराउरी की बात जग चिंतामणि में आती है। और कौन से ग्रंथों में आती है वो हम अभी देखते हैं। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि 18th सेंचुरी में, ओके अभय भाई, सेटिस्फाइड? यस यस, वेरी मच। तो अभी हम आगे चलते हैं। अंग्रेज लोगों ने प्लान किया और एक्सकावेशन चालू किया। और जैसे आज भी होता है, जैसे एक्सकावेशन चालू किया तो हमारे यहाँ शास्त्रों के अंदर
जैन स्तूप का, मथुरा के स्तूप का उल्लेख दिखना चालू किया तो अमेजिंग हो गए, एकदम आश्चर्य हो गए, कितने सारे उल्लेख हैं। तो यहाँ पे जो हुआ एक्सकावेशन, ये इसका फोटोग्राफ है, कितने सारी प्लिंथ दिख रही है। यहाँ पे जब भी देखा, इस यहाँ की ईंटें वगैरह का एग्जामिन किया, तो विंसेंट स्मिथ ने कहा कि ये जो बिल्डिंग है, ये जो जैन स्तूपा की, वो तो मोहनजोदेरो के बाद की है, मिल रही हुई है, मतलब एग्जैक्टली नेक्स्ट टू मोहनजोदेरो, मतलब इट वाज सो ओल्ड। सिर्फ एक साल के अंदर 1890 एंड टू 91 के अंदर more than 737 images and sculptures were found from this place. So we can imagine how big, giant it was. And all images are ranging from 200 BC to 1200 AD. Means we are getting 1400 years history in written form from this stupa. Why it is called Kankali, that I will let you know. Okay. Now, always we like, now what is the present condition? We have seen that all khaddas. What happened? यहाँ से जो इंस्क्राइब इमेजेस निकली, तब तक सभी लोगों की यही धारणा थी कि जैन धर्म इज अ ऑफशूट ऑफ बुद्धिज्म, इट्स अ सेपरेट रिलीजन, नोबडी वाज रेडी टू बिलीव। फॉर दैट पर्पस एक डिबेट दिल्ली में रखी थी, और उसी टाइम पर कंकाली टीला का उत्खनन हुआ। तो जल्दी जल्दी में ज्यादा से ज्यादा मूर्तियां निकालने की लालच में इसको बहुत ही हेफाजतली उत्खनन किया गया। वेरी बैड कंडीशन ऑफ प्रिजर्वेशन। आफ्टर दैट इट वाज कंप्लीटली क्लोज, बंद कर दिया गया और उसके आसपास बाउंड्री लगा दी। आप ये फोटोग्राफ में देख सकते हैं, वहां पे बोर्ड लगाया हुआ है। यहाँ से जो इमेजेस, तोरणास, पिलर्स, ब्रैकेट्स वगैरह जो निकले, वो मोस्टली मथुरा म्यूजियम में है, दिल्ली म्यूजियम में, कलकत्ता के म्यूजियम में और विश्व के बहुत सारे म्यूजियम में है। तो ये जो दो फोटोग्राफ्स इसमें देख रहे हैं, वो प्रेजेंट कंडीशन ऑफ एट अ कंकाली टीला। नाउ वी विल सी व्हाई वी गॉट द नेम। हमने जो कहा आपसे कि ये देव निर्मित स्तूपा कहते हैं, भाई कहाँ लिखा है, कैसे लिखा है, ये इसको आपको मैं बताती हूँ। सबसे पहले वी आर गेटिंग रेफरेंसेस ऑफ मथुरा स्तूपा इन स्थानांग सूत्र, आवश्यक चूर्णी, व्यवहार चूर्णी, यश तिलक चंपू, विविध तीर्थ कल्प एटसेट्रा। इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय अ डेटी कुबेरा इन द टाइम ऑफ सुपास्वनाथ। The story is very much interesting. I will speak in 1, 2, 3 minutes. उद्यान की देवी उनकी सिवियर ऑस्टेरिटी देख करके, खूब घोर तपस्या देख करके खूब प्रसन्न हो गई और उससे कहा कि भाई आपको कुछ मैं वरदान दूं। तो दोनों साधुओं ने बोला भाई हम तो निष्प्रिय, हमको कुछ नहीं चाहिए। तो फिर देवी ने कहा चलो मैं आपको मेरू पर्वत पे दर्शन करा के लाऊं। तो इन्होंने कहा भाई हम तो हमारे आत्मा की शक्ति से और आगम की शक्ति से हमने तो उसके दर्शन किए हैं, पर अगर आप चाहो तो मथुरा के संघ के सभी लोगों को दर्शन कराओ। तब फिर देवी ने एक ही रात में स्तूप वहां पर बनाया, एक ही रात में पूरा बनाया। और वो स्तूप कैसा था, उसका विविध तीर्थ कल्प में बहुत ही सुंदर रेफरेंस, मतलब उल्लेख दिया है कि भाई सोने का बनाया हुआ कंचन गड़ियों और रत्न जड़ित स्तूप था। उसके आसपास प्रदक्षिणा पथ भी था, पूरा जैसा स्तूप आपको आपके मैं फोटो बताऊंगी बिल्कुल वैसा ही इसमें था। अच्छा, अभी यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ना, इसका थोड़ी दूसरी कॉपी बताती हूँ। ये जो पेडेस्टल है वो ऊपर जो बताया वही है, ये प्रभु प्रतिमा का पेडेस्टल है। इसके अंदर जो इंस्क्रिप्शन दिख रहा है, इस पर लिखा है कि मुनीश्वर स्वामी की ये प्रतिमा को देव निर्मित स्तूप के अंदर हम लोग स्थापित कर रहे हैं। और जो ईयर लिखा है ना, वो 157 एडी और उसाना ईयर 79। तो 157 एडी के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया था। वो पर लिखा था कि देव निर्मित स्तूप में स्थापित कर रहे हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि ओके, इसके अंदर जो दिख रही है ये साध्वी है, उसके हाथ में कमल जैसा है, वो प्रतिलेखना रजोहरण बोलते हैं वो है, और जो डिवोटीज है वो हाथ जोड़ के हैं, और एकदम लेफ्ट में है धर्मचक्र के वो बाजू वो जैन साधु है, उसके हाथ में आप वस्त्र खंड है और छोटा वस्त्र भी है, वो आप देख सकते हैं। ओके, विल गो हेड। अब पहले की है, ये लेफ्ट में है, उस पर नाम नहीं है, पर इसके ऊपर उसने टॉप नोट नहीं है, उसकी जो आईब्रोज है इट्स इन वन लाइन कंटिन्यूएशन में है, इसकी आईज जो है वो आलमंड शेप है, इस पर श्रीवत्स है। इससे हमें मालूम पड़ता है कि ये कुषाण पीरियड की है, स्टार्टिंग में फर्स्ट सेंचुरी की है। दूसरी जो है सेकंड वन वो 12वीं सदी की है, उस पर उसनीस देख सकते हैं हम, श्रीवत्स देख सकते हैं नीचे। पार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ ये दोनों तीर्थंकरों का बहुत संबंध रहा है। हाँ। तो पार्श्वनाथ भगवान के समय में मथुरा में ये स्तूप की स्थापना हुई और पार्श्वनाथ भगवान के समय में वापस इसका जीर्णोद्धार हुआ। तो इसीलिए मथुरा में पार्श्वनाथ भगवान का बहुत महिमा है और रेणुका जी तुरंत ही हमको पार्श्वनाथ भगवान का दर्शन कराएंगे। बस नेक्स्ट आगे कैन यू हियर मी? हाँ, अभी मैं आपको अभय भाई ने बोला ना, तो मैं एक अभी आपको बहुत बढ़िया श्लोक बताती हूँ जो हमारे यहाँ पर श्वेतांबर संप्रदाय में सभी गुरु भगवान जो सिद्ध चक्र पूजन या ऐसे बड़े बड़े पूजन होते हैं ना, तब स्तूपा के बारे में कहते हैं। आप बराबर ध्यान से सुनिएगा। मथुरापुरी सुपाश्व, मथुरापुरी सुपाश्व, सुपाश्व स्तूप रक्षिका, मथुरापुरी सुपाश्व, सुपाश्व स्तूप रक्षिका, श्री कुबेरा नरारूढ़ा सुतांका अवतु वो भयात। तो ये उनको कह रही है कि आप मुझे हमारे जो भय है उसको आप दूर करिए और हमारी रक्षा करिए। यहाँ पर जब ये आगे आएगा तब मैं बोलूंगी। जनरली 2 मूलनायक के रूप में पूजे जाते हैं, मथुरापुरी सुपासनाथ और पार्श्वनाथ। ओके, नाउ वील गो हेड। यहाँ हम बात कर रहे थे, तो ये 2 प्रतिमाओं में करीब 1200-1000 साल का फर्क है। ये यहाँ से एक और जो मध्यकालीन प्रतिमा प्राप्त हुई है, चौमुख जी है, वो चौमुख जी के 2 साइड बताए हैं, आप देख रहे हैं ना बराबर? ओके फाइन। सर्वतोभद्र इमेज, अच्छा, ऑफ वर्धमाना एस्टैब्लिश इन 1023। हमें ये कहना है कि वो टाइम पर ये जो लेख है ना नीचे, वो देवनागरी में लिखा हुआ है, और यहाँ से हमको ब्राह्मी लेख भी मिलते हैं और देवनागरी भी मिलते हैं, और ये सर्वतोभद्र वर्ड जो है शब्द, वो मथुरा के यहाँ जो प्रतिमा का जो लेख है उसके अंदर ही आया हुआ है। हमें हमेशा लगता है कि इसका नाम कंकाली टीला क्यों है जब हम लोग जैन स्तूप की बात कर रहे हैं, और एक तरफ तो हम कहते हैं ये जैनी टीला है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब भी कंकाली टीला की जब भी खुदाई चालू हुई उसके पहले लोग यहाँ से अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर स्तंभ प्रतिमाएं वगैरह लेके जाते थे और स्थापित करके मंदिर जैसा बना देते थे। तो यहाँ पर भी किसी ने स्तंभ निकाल करके स्थापित कर दिया और उसका कंकाली देवी जैसा नाम रखा। तो इसके लिए जब भी इसकी खुदाई हुई तो इसका नाम था कंकाली टीला। तो ये आपको मालूम पड़ गया। आज भी वहां पर ये मंदिर है, कंकाली मंदिर, जो आप देख सकते हैं। अभी मैं आयकपट की बात करूंगी। ये जो आयकपट है, मथुरा के अंदर एक और जगह है मुकुंद टीला नाम की, वहां से ये मिला था। आयकपट क्या होता है रेणुकागन, जरा पहले एक्सप्लेन करेंगे? हाँ जरूर। देखो, आयकपट शब्द से ही हमको मालूम पड़ता है कि ये 2 शब्द का कॉम्बिनेशन है, आयक और पट्ट। आयक अर्थात पवित्र, वेरी मच सैक्रेड। एक सैक्रेड चीज को, हमारे जो तीर्थ स्थान है वो सैक्रेड है, हमारे जो सिद्धांत है जैन धर्म के सिद्धांत है वो सैक्रेड है, उसको एक पट के ऊपर बना दिया
ये पत्थर है, इसके ऊपर लिए डेपिक्ट किया अच्छी तरह से। आज भी हम लोग पट्ट के दर्शन करने जाते हैं तो पट्ट शब्द स्टिल इन कंटिन्यू। इवन कितने मंदिरों के अंदर आया ग पट्ट के बदले में नाम होगा शिला पट्ट। तो ये शब्द है, वहां से वही से चले आ रहे हैं। पवित्र पट के दर्शन, ये सिर्फ दर्शन के लिए रहते थे। तो ये जो पट है, इसके ऊपर पूरे स्तूप का दर्शन कर सकते हैं। जो शिलालेख है वो ऊपर की दो जो डोम है, दो वेदिकाएं हैं। जो रेलिंग दिखती है ना, उसको संस्कृत में वेदिका बोलते हैं। वो दो वेदिकाओं के बीच में इसका लेख है। और अकॉर्डिंग टू लेख, इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय गणिका लूण शोभिका। गणिका ने आयकपट भरा है, पार्टीशन। इसका जो स्टार्टिंग वर्ड है नमो अर्हतो वर्धमान से ये चालू होता है। अब इसका मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बता दूं तो मालूम पड़ जाएगा। अब टॉप से चालू करेंगे तो दो साइड में जो बेली दिख रही है वो चैत्य वृक्ष की बेली है। उसके नीचे दो जैन साधु है, उसके हाथ में वो पत्र दिख रहा है और वो सलाम कर रहे हैं, शीर्ष से वंदन कर रहे हैं। उसके नीचे दो इंद्र है, सुपर्णा बोलते हैं, सुपर्णा आयकपटा है। और यहाँ इसकी जो रेलिंग है आप देखिए, बिल्कुल आपको लगेगा ये जैन स्तूपा के बौद्ध स्तूपा, सबका एक जैसा होता था। एक सबसे पहले ये जो स्टेप्स है, स्टेप के पास में एक तरफ क्षेत्रपाल है और दूसरी तरफ हमारी कुबेरा रक्षिका देवी है। अच्छा, स्तूप के दरवाजे के पास में दोनों तरफ साल बज्जिकाएं है। जब भी आगे दूसरी साल बज्जिका आएगी तब मैं उसका डिस्क्रिप्शन ज्यादा डिटेल में दूंगी। पर यह खास इंपॉर्टेंट ये है कि इसका जो स्टार्टिंग वर्ड्स है नमो अर्हतो वर्धमानस है। और यहाँ पे जो स्तंभ है तो एक के ऊपर धर्म चक्र है और दूसरे के ऊपर लायन है। अभी वहां से निकला हुआ तोरण हम देखेंगे तो ये तोरण है, ओनली वन तोरण इज दैट। नीचे फ्रंट साइड है और ऊपर बैक साइड है। ये मथुरा कला है, आगे पीछे दोनों तरफ डिपिक्शन होता था। तो नीचे जो हम देखेंगे स्तूप की पूजा के लिए सुपर्णा आ रहे हैं। अच्छी जो पांख वाले हैं सुपर्णा है, उसके पीछे हरपीस है। आधे सुपर्ण क्या है, सुपर्ण क्या है वो समझाइए रेणुका जी। हाँ, सुपर्ण मतलब पर्ण वाले, पांख वाले देव। वो जनरली गरुड़ देवता। हाँ, गरुड़ देवता। ये ग्रीक माइथोलॉजी में बहुत आते हैं। जो पीछे जो है आधे घोड़े और आधे मनुष्य, वो भी आपको दिख रहे हैं। इधर दोनों तरफ दो दो पैर हैं और सबके हाथ में कुछ पूजा का सामान है, एक उसमें पकड़ा हुआ, वो आप देख सकते हैं। तो ये स्तूप की पूजा करने के लिए आ रहे हैं। ये तोरण है, ये तोरण कंकाली टीला से मिला हुआ है। और पीछे की बाजू ये सब लोग आ रहे हैं, कोई घोड़ा पे आ रहा है, कोई हाथी पे आ रहा है पीछे। और घोड़ा गाड़ी के अंदर भी आपको सब बैठे हुए दिख रहे हैं। जंगल से आ रहे हैं तो वो जंगल का सीन आपको दिखेगा पीछे। ओके, अभी हम आ रहे हैं कि हमें हमेशा लगता है कि जैन स्तूपा, हम तो कह रहे हैं कि मथुरा में बहुत सारी मूर्तियां थी, बहुत सारे मंदिर थे, तो कहाँ पे हैं? तो ये जो अभी हम जो बता रहे हैं ये 84 जगह है, वहां पर मंदिर है। हमारे यहाँ पे जम्बू स्वामी हुए, उनका 84 साल का आयुष्य था, तो वहां पे उनका निर्वाण हुआ। तब से ये स्थल का नाम 84 है, 84। और ये पास में जो पादुका दिख रही है वो जम्बू स्वामी के चरण है। ये एस्टैब्लिश किए गए करीब 14th सेंचुरी में चरण पादुका। अकॉर्डिंग टू हीर सौभाग्य रास, हीर विजय सूरी के समय में 527 स्तूपा थे और टोडरमल ने वहां पर बनाए थे छोटी साइज के 527 स्तूपा बनाए थे। वो तो नहीं दिखते, पर यहाँ पर एक 84 स्थल में एक मंदिर बहुत बढ़िया बनाया है। ये करीब 100-150 साल पहले का है। अभी हमें जरा पसंद आता है कि वहां पर प्रतिमाएं मिली है तो कैसी है, कैसी दिखती है। भाई 2000 साल पहले कैसी थी, उसमें और आज में क्या फर्क है। तो ये जो कुछ स्पेशल फीचर्स है
एक तो हमारे यहाँ पर प्रतिमाएं जो है पीरियड में बताओ तो कुषाण पीरियड पहली सदी से लेकर तीसरी सदी तक कुषाण पीरियड माना जाता है। उसके बाद में गुप्ता पीरियड करीब 5-6 सदी तक वो चलती है कैरी फॉरवर्ड पैटर्न, और उसके बाद में मध्यकालीन। तो ये जो स्पेशल फीचर्स में क्या है उसके, तो इनकी जो आप बीच की प्रतिमा भी देखेंगे तो वेल बिल्ट बॉडी होती है प्रभु की। उनको वीर बताना है, महापुरुष बताना है, तो वीर के लक्षण वाली बनती थी। आइज कभी कभी ओपन भी होती थी, हाफ क्लोज भी होती थी, और उनके जो हैंड्स है वो मैक्सिमम स्ट्रेच रहते थे। ये पहली जो दो है वो पार्थनाथ भगवान की प्रतिमा है, और उसके पास की है वो शिलालेख के अंदर होगा, मोस्टली ये महावीर स्वामी की है, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा के साथ में सर्प फना है, ऋषभदेव भगवान के साथ में केश होते हैं, और अरिष्ट नेमि की ये पीरियड की सभी प्रतिमाएं कृष्ण बलराम के साथ की है। तो अभी आखिरी की जो प्रतिमा जो आप दिख रही है उसका नीचे का जो पेडेस्टल है पवासन, उसमें एक छोटे से स्टैंड के ऊपर चक्र रखा हुआ है स्टैंडिंग पोजीशन में ऐसा खड़ा, और उसके आसपास में ये भक्त है, चतुर्वेद संघ है। ओके, नेक्स्ट विल सी। ये मथुरा कला की कैरेक्टरिस्टिक ये है जो बताया ना, आगे पीछे साइड सभी बाजू से उसको बनाया जाता था। तो ये जो है ये इमेज करीब करीब कुषाण संवत 7 की है, मतलब अंदाज से करीब 80 के आसपास की है। ये फ्रंट साइड है। अच्छा, पहले श्वेतांबर दिगंबर सभी प्रथा में एक ही जैसी बनती थी, यहाँ पे डिफरेंस नहीं आए थे। प्रतिमा में जो डिफरेंस आने चालू हुए, श्वेतांबर दिगंबर की अलग प्रतिमा है, वो 5वीं सदी के बाद आई। तो यहाँ पे जो देखते हैं हम लोग पहली प्रतिमा में, तो एक तरफ जैन साधु है और एक तरफ जैन साध्वी है, और बैक साइड पर साध्वी खड़ी है, उसके हाथ में जो ओघा आज के हम लोग बोलते हैं ना, वो है प्रतिलेखना, और साइड पर दोनों बाजू स्तंभ है। ये आपको 3 बताया, चौथा साइड नहीं बताया, वो भी ऐसा ही है। हम जो पहला फ्रंट जो देखा था ना, इसका जो मैं थोड़ा सा शिलालेख के बारे में बता दूं, इसका जो आयगपट के शिलालेख के अंदर यर नहीं दिया है, पैलियोग्राफी वो उसके शब्द के ऊपर से हमें मालूम पड़ता है कि ये सब 200 बीसी के हैं, ऑल आयगपट्स मोस्टली, और बिफोर 100 ईयर्स, मतलब फर्स्ट बीसी के पहले के। इसका जो नमो अरहंतानम से चालू होता है आयगपट, और शिव यशा वाइफ ऑफ अ डांसर, फागु यशा की जो वाइफ थी ना, उसने ये आयगपट बनाया लोगों के दर्शन के लिए। इसमें भी आधा सूप दिखता है, और जो सालबंजी का है दोनों तरफ एक एक बताई है। अभी आपको मैं एक बता देती हूँ, हमारे यहाँ पर एक शास्त्र है, उसका नाम है राय पसेनीय सूत्र। उसके अंदर कहा गया है कि जो स्तूप के पास में तेसिमनम दाराणम उबो पासो 16 साल बंजिया, तो यहाँ प्रतीक के लिए एक एक साल बंजिकाएं रखी है। ओके, विल गो। अभी हम दूसरा आयत पट देखेंगे। साल बंजिका की विशेषता के बारे में थोड़ा प्रकाश करेंगे। अब अभी साल बंजिका जैसे ही आती है ना, आगे आएगी ना, तब मैं बताती हूँ। अभी ये अष्टमंगल का आयत पट आया, इसके बता देती हूँ भाई जस्ट आफ्टर स्लाइड्स। ओके, थैंक यू। तो ये जो आयत पट है, इसमें आपको अष्टमंगल इतने क्लियर दिख रहे हैं। हम अष्टमंगल मतलब क्या, मंगल मतलब ऑस्पिशियस हैपनिंग्स, हमें इसके दर्शन करने से सब कुछ शुभ होता है। आज भी हम लोग पैरो फिश को मंगल मानते हैं। इसके पास में मिरर है, इसके पास में श्रीवत्स है, वर्धमानक है, और नीचे देखेंगे तो ये त्रिरत्न है, फिर फुल ब्लॉन लोटस है, भद्रासन है, और कुंभ है। ये बहुत ही सुंदर आयत पट है। ये आप इसकी भौमितिक डिजाइन देखना। अब आपका जो मैं इंपॉर्टेंस ये बताऊं इसके सेंटर के अंदर जैन प्रतिमाएं है। जैन प्रतिमा के ऊपर एक तो पद्मासन में है, और ऊपर चैत्य वृक्ष है।
अभी उसके आसपास जो चार जो पैर जो दिख रही है वो दर्शन ज्ञान चारित्र की चार पैर है, चारित्र की जगह पर सर्कल है। मतलब विद द हेल्प ऑफ हम दर्शन ज्ञान चारित्र के सहारे से अरिहंत पद की प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसा इसका कहने का भाव है। ओके, दोनों साइड में आप एक तरफ हाथी है स्तंभ के ऊपर और एक तरफ चक्र है। ओके, एक और आयक पट आया है स्वस्तिक का, इसमें भी ऑस्पिशियस सिंबल्स इन स्वस्तिक। ये जो है ना नंदावर्त की स्टाइल का स्वस्तिक है। राउंड राउंड फिगर जो जाता है ना वो नंदावर्त, नंदी जान को आवर्तो इति नंदावर्त है। तो ये आपको बीच में जैसे पहले बताया, इसे हमको अरिहंत पद की प्राप्ति करनी है तो हमको इसका सहारा लेना पड़ेगा, ज्ञान दर्शन चारित्र का सहारा लेना पड़ेगा। और जो बड़ी जो चौड़ी रिंग आपको उसके आसपास जो दिख रही है, इसके अंदर संसारी जीव भटक रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ 3 jewels they can reach to अरहत पद। ओके, बिल्कुल नेक्स्ट। यहाँ पर हमारे जो अष्टमंगल है उसमें से 3 मंगल को सिंहासन पर बैठाया है। 3 एक तरफ सबसे पहले चैत्य वृक्ष है, सबसे टॉप पर त्रिरत्न है और इधर श्रीवत्स है, और सेंटर के अंदर पद्मासन के अंदर तीर्थंकर विराजमान है। एक तरफ एक डिवोटी हाथ जोड़कर खड़ा है और एक स्त्री चवर लेकर के खड़ी है। ये भी धर्मचक्र का आयत पट है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाती हूँ क्योंकि फिर आपका समय का थोड़ा पाबंदी हो जाएगी, पर ये आप देख सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ रत्नत्रयी के अंदर बीच में पैर है, वो हम बीच के सेंटर तक पहुंच सकते हैं। ये भी सब मंगल के लिए ये है ऑस्पिशियस, ऑल सब अष्ट मंगल सार डिपिक्टेड ऑन दिस। हाँ, अभी आया है हमारे पास में ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रो ऑफ महावीरा, गर्भहरण का शिल्प हमको वहां से मिलता है। ये जो है ऊपर की स्लाइड में लेफ्ट में, अच्छा पहले बता दूं ये फ्रंट साइड और नीचे की बैक साइड एक ही शिल्प है, फ्रंट एंड बैक। तो यहाँ जो है हिरण्यगमिश देव भगवान गर्भहरण करके बैठा है, उसके नीचे है मिठाई वगैरह रखी हुई है। 2 माताएं साथ में खड़ी है, एक दोनों, एक इधर जो पास में जो खड़ा है एक परमात्मा है, अभी नहीं हुआ है इसके लिए वो छोटा बताया है। और आफ्टर डूइंग दिस वर्क रिजॉइसिंग का नीचे सीन है, वो डांस गरबा जैसा ये कर रहे हैं, और इसके हाथ में हार्प इंस्ट्रूमेंट है, हार्प बजाने का वाजिंद्र हमको वहां पे भी मिलता है, ग्रीक वगैरह में भी मिलता है। अभी मैं थोड़ा ये तोरण है वहां से मिला है, कंकाली टीला से ही प्राप्त हुआ है, बहुत ही सुंदर है। इसका एक साइड है और दूसरी साइड भी आएगी। यहाँ सबसे ऊपर स्तूप है, स्तूप के दर्शन के लिए विराजमान है, और इधर चतुर्विध संघ इसका दर्शन कर रहा है, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, उनके नीचे तीर्थंकर है, तीर्थंकर का भी दर्शन कर रहे हैं। और उसके नीचे जो देवी है ये शायद कुबेरा देवी हो सकती है, नाम नहीं लिखा है, पर ये सब चतुर्विध संघ का दर्शन कर रहे हैं। ऐसा ये तोरण है, ये तोरण का दूसरा भाग है, एक साइड में एक साथ में आ नहीं सकता, इसके लिए दूसरा भाग है। वो सबसे पहले हमें देखना है कि कॉर्नर पे इंद्र जो है ना, वो साथ में वो लोटस फ्लावर लेकर के पूजा करने के लिए आ रहे हैं। ये जो पिलर है बहुत ही सुंदर है, ये फ्रंट और बैक पीछे की बाजू का सीन है। ये सेकंड बीसी का असाइन किया हुआ है, स्तंभ के ऊपर सिंह है और एक कपल उसकी प्रदक्षिणा कर रहा है। ये बहुत ही सुंदर है, वो हाथ पकड़ करके वो जा रहा है और दूसरा पीछे से वो हाथ पकड़ के आ रहा है। और पीछे की बाजू जो है वो सीन ऑफ सेलिब्रेशन। अभी ये मैं बताऊंगी मंगल प्रतीक की जो बात करी हमने, तो वो समय में जो प्रतिमाएं आती थी उस पर मंगल प्रतीक होते थे। यहाँ आप देख सकते हैं
स्वस्तिक देख सकते हैं, वर्धमानक है, श्रीवत्स है आदि आप देख सकते हैं। इसके साइड में जो मस्तक है उसकी मुझे खास बात करनी है। उसकी आंखें आधी बंद आधी खुली है। मस्तक के ऊपर उस्तीस नहीं है, टॉप नॉट नहीं है। इसकी ऊंचाई आप सोच सकते हैं कितनी है? मोर देन 20 इंचेस। ये फोटोग्राफ मैंने ही लिया हुआ है। 28 इंच से बड़ा मस्तक है, तो आप सोच सकते हैं कि प्रतिमा हमारी कितनी ऊंची होगी। अभी मैं थोड़ी सी और एक और बात कर लूं। जब भी यहाँ से लुटेरे ये स्तूप में से जब सामान लूट के गए, उसके बाद में उन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखा है उनके अनुसार 5 वार ऊंची 5 सोने की ठोस मूर्तियां लेके गए थे। 200 ऊंट पे सब सामान डाल करके सोना चांदी वगैरह गला करके साथ में लेके गए थे पूरा मथुरा नगरी में से। ये अमेजिंग है। तो ये इससे हमें मालूम पड़ता है कि कितनी ऊंची वहां पे मूर्तियां बन रही होगी उस टाइम पे। हाँ, ये चौमुख जी है सर्वतोभद्र। इसको यहाँ पे स्तंभ के ऊपर स्थापित किया जाता था, खड़ी प्रतिमा, क्योंकि ऊपर सॉकेट है छत्र के लिए, छत्र रिसीव करने के लिए, और नीचे जो सॉकेट है वो स्तंभ के ऊपर स्थापित होती थी और इस पर इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं। इसी करीब करीब 28 चौमुख जी मिली है। जो ऊपर लिखा है उसका मैं रिपीटेशन नहीं कर सकती हूँ, एनीबॉडी कैन रीड दैट आल्सो। ये खड़गासन में है और बैठी हुई प्रतिमाएं भी है। ये जो साधु है पद्मासन के नीचे, मतलब जो पेडेस्टल के ऊपर बीच में चक्र है और एक तरफ साधु सवस्त्र है और एक तरफ साध्वी है, दोनों के हाथ में प्रतिलेखना है। हमको ये देखना है कि इसकी पूजा ये कर रहे हैं, साधु साध्वी 3 जेवल्स की पूजा कर रहे हैं और ये ऊपर प्रतिमा देख सकते हैं। यहाँ पर एक ये बताया है कि गोचरी लेने के लिए जो एक वो गोचरी भोरा रही है पात्र में और इसके हाथ में झोली है, और ये प्रतिमा कितनी सुंदर होगी यह हमको देखते ही मालूम पड़ता है। अभी ये साधु है, अरे वो नीचे, आई एम टॉकिंग अबाउट पेडेस्टल, सॉरी, पहले सबसे पहले प्रतिमा की बात कर लूं। ये फुल प्रतिमाएं मिली है, बिल्कुल एकदम अच्छी कंडीशन में है। अभी ये मथुरा, अरे लखनऊ म्यूजियम में है। ये करीब करीब 3री सदी की है। मुझे जरा जल्दी करना है क्या नील भाई साहब? यस, ओके। यहाँ पर पेडेस्टल पे एस्थेटिक मतलब सवस्त्र और हाथ में वस्त्र लिए सब साथ में खड़े हैं, ये आप देख सकते हैं। चतुर्विध संघ है, ऊपर की प्रतिमा नहीं दिख रही पर ये चतुर्विध संघ है। अपने अभय भाई आपके क्वेश्चन का मैं जवाब दे दूं, कभी आगे मेरा आएगा कि नहीं आएगा, मैं देख लेती हूँ। हाँ, ये आई है 42 पे पहले मैं जाती हूँ, हाँ, ताकि फिर मैं पहले आपका जवाब दे दूं। साल पंजिका है, तो ये जो है साल पंजिका है। तो हमारे यहाँ रायपसेन सूत्र में इसका वर्णन किया है कि भाई ये जो बैठी है ना उसके ऊपर बालकनी होती है और बालकनी के ऊपर लोग ऐसे बैठे रहते हैं। रायपसेन सूत्र में जैसे लिखा है कि वो खुद विमान चला रहा है। रायपसेन सूत्र के अंदर प्रेक्षागृह का डिस्क्रिप्शन है और वो प्रेक्षागृह बिल्कुल जैन स्तूप से मिलता है। और उन्होंने लिखा है कि साल पंजिका इस तरह से यहाँ पर आप सबके ऊपर आप देख सकते हैं, बालकनी के ऊपर जैसे कोई बैठे हैं, somebody sitting। और ये जो है एक मिरर देखती है पहली, और सेकंड लैंप लेकर के जाती है, और तीसरी के हाथ में वो एडोरेशन का पूजा के लिए पूजा पाठ का सामान लेके जा रही है, और उसके हाथ में एक कुंभ जैसा है, उसमें जल है। ओके, अभी मैं ऊपर जा रही हूँ। ये सरस्वती की प्रतिमा मथुरा से मिली हुई है। इसकी लाक्षणिकता यह है कि इस पर नाम है सरस्वती और ईयर लिखा है 54। कुशाण समझ 54 में एक लोहार ने ये भराई थी। इसकी मैं लाक्षणिकता पहले बता दूं कि इसके हाथ में मैनुस्क्रिप्ट है और एक तरफ जैन साधु कुंभ लेके खड़ा है
और एक तरफ श्रावक है हाथ जोड़ के। ये लक्ष्मी है और ये अंबिका माता है, ये भी सब वहां से निकली हुई है। और अंबिका के ऊपर अरिष्टनेमी है। अब हो गया, बस अभी ज्यादा टाइम नहीं, लास्ट। ये क्षेत्रपाल है, ये रेयरली 1962 में मिला है। उसके ऊपर अब जैन प्रतिमा है। क्षेत्रपाल के इसके पांव को आप देखिए कैसे बनाया गया है, मतलब ये मुझे लगता है 2500 साल से ज्यादा पुराना होगा। और इधर खड़ी प्रतिमाएं हैं, ऋषभदेव भगवान के केश दिखते हैं, इसके आप साइज देख सकते हैं। हमें सिर्फ ये कहना है कि पहले श्वेतांबर दिगंबर प्रतिमाएं एक जैसी बनती थी, उसके बाद में करीब 5वीं 6वीं सदी के बाद में अलग अलग प्रकार की बनने लगी। अभी लास्ट में मैंने एक लाडलू की सरस्वती की प्रतिमा लाई हूँ आपके सबके दर्शन के लिए, और मैं यहाँ पूर्ण कर रही हूँ माँ सरस्वती के श्लोक से, ताकि फिर क्वेश्चन आंसर का टाइम रहे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सिर पे साजे। मन से हमेरा मिटा दे अंधेरा, मन से हमेरा मिटा दे अंधेरा, हमको उजाले का वरदान शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। जय जिनेन्द्र, जय महावीर, जय। थैंक यू सो मच रेणुका जी, इतना एनलाइटिंग था कि इस बारे में तो कभी ऐसे मीन्स कहीं पढ़ने भी नहीं मिला और इतना सोचा भी नहीं कि हमारे इतने सारे खजाने मीन्स खुदाई में निकल रहे, और इतने पुराने पुराने जिसमें सोने की मूर्तियां भी थी, और जो कुछ लुटेरे लूट के चले गए, और हमारे पास अभी जो बचा है वो कुछ म्यूजियम में पड़ा हुआ है। पर इतना सुंदर आपने ये सब शाल भंजी का ये और स्तूपा, ये सब क्या होता है, एकदम ऐसे नए नए सब्जेक्ट्स थे, पर आपने थोड़ा थोड़ा टचअप बहुत अच्छा किया, सभी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कवर किया। मैं क्विकली डॉक्टर अभय जोशी से एक पूछना चाहूंगा कि आप थोड़े हमारे श्रोताओं को बताओगे कि आपने रिसर्च किसके अंदर किया? मेरा जो रिसर्च है वो 24 पर है, 24 तीर्थंकरों के स्तवन पर। 24 तीर्थंकरों के जो स्तवन है उसके पर मैंने रिसर्च किया है। उसमें मूल रूप में आनंदगंज जी, यशो विजय जी, देवचंद्र जी, मोहन विजय जी, ये सब कवियों ने बहुत अच्छी 24 लिखी है, और वो 24 का मैंने अध्ययन किया है, और वो थीसिस 2007 में पब्लिश भी हुआ है। और ये जो मथुरा में जो मूर्तियों की बात हो रही थी, तो वो भी मेरा एक रस का विषय है। रेणुका बेन का जो पुस्तक है वो भी मैंने साध्यंत पढ़ा है। तो ये जो पुस्तक है इसमें भी उन्होंने बहुत सुंदर बात की है। तो मेरे रिसर्च के बारे में तो मैंने आपको बात बता दी। बहुत ही अच्छा लगा कि किसी ने जैन भक्ति लिटरेचर के अंदर इतना अच्छा रिसर्च किया है। थोड़े वेबिनार्स पहले ही हमारे साथ एक बहुत बड़ी हस्ती डॉक्टर रमजान हसन, आप पहचानते ही होंगे। yes, अच्छे से आनंद गंजी के कुछ पद, आनंद गंजी की 24 के जो पद लिए थे, आज भी शायद हम कह सकते हैं कि हमारे जितने भी मित्र इस वेबिनार में जुड़े हैं उनके हृदय को छुए थे। एकदम अमेजिंग सेशन लिया था, और ये बहुत ही प्रिय विषय हो चुका है। तो डॉक्टर अभय जोशी जी से भी हम प्रार्थना करेंगे कि जल्दी जल्द हम आपके मुख से भी ये सब महात्माओं की कविता स्तवन के बारे में अध्ययन करना चाहेंगे। जरूर। Nil bhai, can I intervene? Yes, Ramesh uncle, please. Thank you. Thank you, Renuka ji. Thank you, Abhay ji. I think both of you scholar. So thank you so much for both of you. I think we have lack of time. जैसे बोलते हैं ना कि भोजन में बहुत दो अच्छे पुरुष थे, तो we don't know अभय जी का कितना लेवे और रेणुका जी का कितना लेवे. I think we have two great scholars here, sharing their experience. और टाइम का तो इतना कमी है कि हम जनरली 40 minutes है. But I have one question. Thank you, Renuka ji, to enlighten us that there was something called royal route. We all know about Silk Route by China, but we never know there was also a royal route. One place for business. It's also very nice to know that how these business people they flourished and how they used to donate and construct the temples, which is very enlightening for us. अभी ये सब देख के बहुत खराब लगता है कि इतना हिस्ट्री अपन प्रिजर्व नहीं कर पाए हैं. जानना तो बहुत है, हर एक चीज पे आपने
अष्टमंगल का बताया, मूर्ति के बारे में बताया, बट कैन यू सजेस्ट अस, अभय जी और रेणुका जी, मेरा एक प्रश्न है, गोइंग फॉरवर्ड हाउ डू वी प्रिजर्व दिस? जो हुआ आगे हम इसको कैसा सुरक्षित रखें? सॉल्यूशंस बताइए आप। अभय भाई के पास में बहुत अच्छा सजेशन है, बात कर ही रहे थे। ठीक है अभय जी, आप बताइए प्लीज, हमको इसको कैसे रखना है, कैसे प्रिजर्व करें आगे अपने पीढ़ी को, इसको जितना भी बचा है उसको कैसे प्रिजर्व करें अपन? एक तो ट्रिप दे जाने तो आप कह रहे थे ना। हाँ रेणुका जी आप बताइए पहले। हाँ, हम लोग दोनों जने जब ये बात कर रहे थे तभी यही हमारा ख्याल था कि हम लोग शत्रुंजय वगैरह हमारी तीर्थ यात्रा पे जाते हैं ना, तो साथ में ये पुराने जो तीर्थ है जो अभी हाल नहीं है, पर फिर भी उसके बारे में बहुत कुछ होता है जो वहां जाएंगे तो मालूम पड़ता है। मथुरा गए तो वहां के म्यूजियम में जाकर के वहां के मूर्तियों का दर्शन करना बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, एक और बात था रमेश भाई साहब, मैंने म्यूजियम में इतनी बार जाती थी तो वहां पर जो बुद्धिस्ट आते थे वो बाकायदा चप्पल जूते निकाल करके उनकी जो बुद्ध प्रतिमा होती थी उनका इतना प्रेम से श्रद्धा से दर्शन करके नमन करते थे, मैंने देखा। तब से मैं भी अच्छी प्रतिमा होगी तो मैं भी हाथ जोड़ती हूँ, नमन करती हूँ। ये हमारे में कुछ बदलाव आया दूसरों को देखते थे और जाने लगे, और क्योंकि हमारी धरोहर को हम नहीं पहचानेंगे तो और कौन पहचानेगा। और हम आपका धन्यवाद अदा करते हैं क्योंकि आपने ये चालू किया, इससे बहुत से यंगस्टर जुड़ेंगे। ये तो हमारी छोटी कोशिश है। अभय जी, कैन यू जस्ट टेल अस सॉल्यूशन गोइंग फॉरवर्ड, हाउ डू वी प्रिजर्व दिस एंड हाउ कैन वी चेरिश दिस होल हिस्ट्री ऑफ आवर्स? सबसे पहले तो जब हम तीर्थ यात्रा के लिए जाए तो तीर्थों का इतिहास को जाने। दूसरा, हम गुजरात और राजस्थान के तीर्थों को छोड़ के, मतलब वहां पे तो जाए ही दर्शन के लिए, वो तो अपने नजदीक के ही है, अपने दिल की धरोहर है, मगर नॉर्थ के जो कल्याणक भूमि है और नॉर्थ की ऐसे कल्याणक भूमि और ऐसी ही प्राचीन भूमि जैसे श्रावस्ती, मथुरा, अयोध्या में जहाँ राम मंदिर बन रहा है उसी के पास में ऋषभदेव भगवान का प्राचीन मंदिर है, अजितनाथ भगवान उनके कल्याणक हुए। तो ये कल्याणक भूमियों की स्पर्शना करेंगे तो हम इतिहास से जुड़ेंगे। और हर जगह पर जो भी अपने तीर्थ है वहां पर म्यूजियम बनना चाहिए। पालिया में बना है, मगर जैसे शंखेश्वर में बहुत सारी प्राचीन प्रतिमा जमीन से निकली, मगर कुछ लोग बोलते हैं कि खंडित है तो समुद्र में पधरा दो, नदी में पधरा दो। नहीं, पधराने की जरूरत नहीं है, उसे म्यूजियम बना के संभालो। म्यूजियम बना के संभालेंगे तो अब मालूम पड़ेगा कि अपनी इतनी पुरानी धरोहर है। आज गुजरात में जगह जगह पर प्राचीन प्रतिमा निकल रही है। कुछ समय पहले ही बड़ाली वडनगर के पास भी सुंदर प्रतिमाएं निकली। तो थोड़ी सी खंडित होते ही हम बोलते पधरा दो, नहीं, उसे संभालो। तो ये मूर्तियों संभालेंगे तो हमारी धरोहर सुरक्षित रहेंगी। बच्चे लोगों को ये चीज देखने की एक दृष्टि दो, ये कल्चर को संभालने की एक दृष्टि दो। ये चीजों को संभालने के लिए केवल पूजा नहीं मगर दर्शन ध्यान से करने की दृष्टि दो। हम क्या होता है कि बस पूजा जल्दी करना है, मगर मंदिर की शिल्प समृद्धि भी अगर हम देखेंगे, मूर्तियों का भाव विश्व को हम देखेंगे, पूजा जरूर करें मगर मूर्तियों को का भाव विश्व देखने की भी एक ट्रेनिंग बच्चे लोगों को देनी चाहिए, जिससे ये आगे पीढ़ी तक ये शिल्प समृद्धि आगे की पीढ़ी तक लोगों से जुड़ती रहे। और जो मथुरा की बात रेणुका बहन ने की है, ऐसे ही संशोधकों को तैयार करना चाहिए। श्रावस्ती, अयोध्या, फिर अपने विमलनाथ भगवान की जन्मभूमि कांपुल्यपुरी, मिथिला जहां पर नमीनाथ भगवान और मल्लीनाथ भगवान का जन्म हुआ। तो ऐसी हर नगरियों के बारे में, जैसे मथुरा का इतिहास रेणुका बहन ने ढूंढ के निकाला, तो इसी तरह से हर नगरी का इतिहास ढूंढ के निकालेंगे तो अपने प्राचीन इतिहास की बहुत सारी जानकारी हम आगे वाली पीढ़ी तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। सही बताया एकदम अभय जी ने आपने कि हाउ डू वी प्रिजर्व। हमारे जैन टॉक्स में हमने एक सोचा है, अभी तक मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ कि हम सोच रहे कि इस वेबिनार वीडियो के थ्रू हर एक कल्याण भूमि को सब दर्शकों को लेके जाके दर्शन कराए। सो एक हमारी सोच है कि हर कल्याण भूमि जाए कोई पर्सनली, उसका वेबिनार के थ्रू कहाँ जन्म कल्याणक हुआ, कहाँ दीक्षा कल्याणक हुआ है, उस सब का दर्शन कराए। एक 108 पार्टनर का भी दर्शन कराए, ताकि सब लोगों को पॉसिबल नहीं है, काफी लोगों को
जाने की संविधा नहीं है, कोई फॉरेन से है तो वो यहाँ नहीं सकते, तो हम सोचा कि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी से सबको दर्शन कराए। एक छोटी सी कोशिश है, और आपने सही कहा कि इस टोटल कल्चर और सृष्टि को अपन बहुत ही प्रिजर्व करे, ऐसा नहीं कि खाली पूजा करके जाए। वेरी वैल्यूएबल सजेशंस अभय जी, थैंक यू रेणुका जी फॉर योर पेशेंस, फॉर योर टाइम एंड द अमाउंट ऑफ टाइम यू डेडिकेटेड and put us in the 35 minutes. आपने तो कितना रिसर्च किया होगा, कितना साल इसके ऊपर आपने किया होगा, then you would have come out with the books. I understand it is not easy, but you have given us so much knowledge in last 30 minutes. We are really honored, and हम आपके बहुत आभारी। Thank you अभय जी, thank you.